Hello everyone. So let's start the session now. In order to understand Git, we need to know about version control system. Version control system is a system that records changes to a file or set of files over time so that you can recall specific versions later, be it data, coding scripts, or notes. For example, suppose you are a web designer and want to keep every version of an image or layout. A version control system is a very wise thing to use. Coming to Git and GitHub, Git is the most popular version control tool that developers use to save all relevant versions of a file or code. So let's understand GitHub now. GitHub is a code hosting platform for version control and collaboration using Git. It lets you and others work together on projects from anywhere. People use GitHub to build some of the most advanced technologies in the world. Whether you're visualizing data or building a new game, there's a whole community and set of tools on GitHub that can help you. Now, Shriom will take over. So please kindly follow all the steps side by side, perform task on your workstation for better understanding. And thank you for being a part of this session. You can join our Discord server Codification. Here is the link, and also subscribe to our YouTube channel where this session's video will be uploaded later this week. Thank you, and now I will hand over to Aditya. So for people who ever have a Mac, they need to go to Git. Just type in Git in your web browser. There you will find uh, a website where you can download for Mac. Just click on download for Mac. If you will get three options with the help of Homebrew. If you don't have Homebrew in your computer, you can just go to your browser and type Homebrew download for Mac. There you will find Homebrew and click on this, copy this link, go in your terminal, and just paste. The Homebrew will install. It will ask for your password because it's a sudo command, and in this way the Homebrew will install. Then you just have to copy this link and paste there. Okay, I have my Homebrew installed, so I have my Homebrew and Git both installed, so I don't need to install it. Now I will give Ayusha the screen because to explain it on a Windows laptop. Thank you, Aditya. So to install Git on Windows, it's a very easy process as compared to Mac. You just need to go on a Google and type Git. From there, you can just click on the download Git link and then Windows. You have to know your system. Is it 64-bit or 32-bit? Though there are very less 32-bit system, but there might be some. So be careful about that. Save the file and just open it. Here, there will be an .exe file which will be downloaded in the specific folders. I hope all of you are doing it side by side. Which for me it's download folders. Probably you have changed the folder. You can look according to it. Then click on git.exe. It will ask for confirmation. Next. 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 Everything will be decided by Git. You don't have to do anything. So
Following this process, Git would be installed in your PC, and then let's just wait for a few seconds. It will ask you if you want to launch your Git bash or not. I will launch Git bash and show you, guys. So this is the Git bash location. Now I'll hand over to Shriyam to tell you how to use Git in Windows. Thank you. There is only one sorry Shriyam, there is only one difference between using Git on a Microsoft and Windows laptop, that you don't have a Git bash. For Mac. Okay, so everyone asking understanding Hindi here? Yes. Yep. ओके सो तो बेसिकली क्या होता है, गिट बैश और गिट टर्मिनल में कुछ फ़र्क नहीं है, बट गिट बैश लिनक्स पे ऊपर बेस है और टर्मिनल विंडोज़ के ऊपर. सो मैं प्रिफर करता हूँ गिट बैश. यू कैन ऑल्सो रन इन टर्मिनल. अगर कोई वी एस कोड भी यूज़ करता है तो वहाँ पे टर्मिनल पे जाके कोड को चेंज करके बैश करके वहाँ पे भी तुम लोग लिख सकते हो. तो यू कैन ऑल्सो रन इन टर्मिनल ऑल्सो. सबका हो गया इंस्टॉल? हाँ. ओके, तो एक बार वो इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे गिट बैश बोल के दिखा देगा. सो इसको क्लिक करना है. अब बड़ा करने के लिए यू कैन यूज़ कंट्रोल प्लस सिंबल. अब अगर हम लोग यहाँ पे गिट लिखें तो कुछ ऐसे आ जाएगा, इतना बड़ा कुछ कमांड्स इस पे लिखे होंगे, ये आ जाएगा. मतलब अभी इसका मतलब ये है कि गिट अपना सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है. अब अगर हम लोग कुछ चाहते हैं, लाइक अभी हम लोग फाइल एक्सप्लोरर खोले, यू कैन ऑल्सो रन इन लोकल डिस्क. नहीं तो अगर तुम स्पेसिफिक फोल्डर जाते हो, जैसे मैं स्पेसिफिक फोल्डर पे ही जाऊंगा और यहाँ पे कुछ बनाते हैं लाइक गिट ट्यूटोरियल. तो इसके अंदर वी विल क्रिएट सम फाइल्स, कुछ भी कर देते हैं, टेक्स्ट फाइल्स. इसके अंदर कुछ लिख देते हैं सो दैट वो दिखाए. हाँ, तो अब इसके अंदर विंडोज़ पे जो भी है यू कैन राइट क्लिक और यहाँ पे ही गिट बैश हियर ये ओपन कर सकते हो. कुछ अच्छा विंडो खुल जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप, जब भी गिट यूज़ करना है वी हैव टू राइट गिट स्टेटस. तो अब ये बता देगा, ये अगर ये रिपोजिटरी है तो ये बता देगा, नहीं है तो नहीं बताएगा. लाइक यहाँ पे लिख दिया नॉट ए गिट रिपोजिटरी. तो गिट रिपोजिटरी बनाना है अब हमें, तो उसके लिए हम कर सकते हैं गिट कमांड है, अगर नोट कर लो, नहीं तो रन करके भी देख सकते हो, गिट इनिट. अब ये बन जाएगा एक रिपोजिटरी. और एक चीज़ है, बहुत लोग चाहते हैं कि गिट को अपना नाम और ईमेल आईडी बता के रखने के लिए, जब भी हम कोई कमिट्स देखें तो उस पर ऑथर अपना नाम आ जाए. तो उसके लिए हम ये कमांड रन कर सकते हैं, गिट कन्फिग -- ग्लोबल, ताकि ये हमें हमेशा नहीं करना पड़े. एक बार सेट कर लिया तो वो हो गया. यूज़र डॉट नेम, फिर अपना नाम लिख सकते हैं.
ये हो गया। अब इसको हम व्यू कर सकते हैं कुछ ऐसे, git config यूज़र डॉट नेम, ये आ गया कोडिफिकेशन। अब वैसे ईमेल भी सेट कर सकते हैं, git config --global यूज़र डॉट ईमेल और कुछ भी। अब इसको भी व्यू कर सकते हैं git config यूज़र डॉट ईमेल से, ये आ गया। तो ये अपना प्रोफाइल टाइप ऑफ सेट हो गया। अब हमने git init कर रखा है, तो अब हम लोग हैं git ट्यूटोरियल पे फोल्डर पे, तो उसको देखने के लिए सिंपल है pwd करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये रहता है, तो ये दिखा देगा कि हम लोग हैं कहाँ। और एक है ls, ये लिस्ट कर देता है कि ये फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं या क्या क्या फोल्डर है वो सब। अगर हम अब ये ls क्रिएट करें तो ये एक तो टेक्स्ट फाइल है जो मैंने क्रिएट करा था, वो दिखा दे रहा है। अब अगर git स्टेटस हम लोग लिखे तो लाइक git स्टेटस एक ऐसा कमांड है जो हर टाइम यूज़ होने वाला है। तो ये दिखा दे रहा है कि भाई आपने तो ये फाइल अनट्रैक करा ही नहीं है, अब इससे पहले आपने रिपोजिटरी तो बना दिया, इसे अनट्रैक ट्रैक तो कीजिए। तो हमें क्या करना है, git ऐड करना है ये फाइल को। तो पहले git क्या करता है, एक डॉट गिट फाइल बनाता है जो कि हिडन रहता है। तो उस पहले हमें ऐड करके उसे स्टेजिंग एरिया में लाना है, और एक बार ये फाइल स्टेज हो गया हम उसे कमिट भी कर सकते हैं। तो हम लोग बिना स्टेज एरिया पे लाके भी डायरेक्ट कमिट कर सकते हैं, बट स्टेजिंग एरिया पे लाके कमिट करने में हमें और एक बार रिव्यू करने का चांस भी मिल जाता है। सो इट वुड बी बेटर इफ़ यू ब्रिंग इट टू द स्टेजिंग एरिया। तो अब इसको ऐड करने के लिए दो तरीका है, या तो ऐसा लिख लो git add --a, तो ये सारे भी फाइल्स जो भी हैं अनट्रैक्ड हैं या मॉडिफाइड है सब ऐड हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ git add स्पेस देके डॉट लिख दो, ये भी ऐड हो जाएगा। अब अगर हम लोग git स्टेटस रन करें तो ये दिखा रहा है भाई आपने स्टेज तो कर दिया, अब कमिट कर दो। तो कमिट करने का सिंपल है git commit -m लिखना है और अपना जो भी मैसेज है वो लिखना है। यहाँ पे हम लोग अगर लिखें इनिशियल कमिट, तो पहली बार हम कमिट कर रहे हैं, ये आ गया। अब ये कमिट हो गया। अब अगर git स्टेटस रन करें तो ये दिखा देगा कि ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ब्रांच मास्टर पर रहते हैं, और अगर हम अपना कमिट देखना चाहते हैं तो सिंपल सा कमांड है git log, इससे आप अपना कमिट देख सकते हैं कि कोडिफिकेशन ऑथर ने किया, इसका ईमेल आईडी ये है, टाइम है ये है, और इसका मैसेज है इनिशियल कमिट। अब अगर मैं ये फाइल चेंज करता हूँ, लाइक इस पर कुछ लिखते हैं, इसको सेव करते हैं, अब फिर से गिट पे जाते हैं और क्लिक करते हैं git स्टेटस, तो ये दिखा देगा भाई आपने तो मॉडिफाई कर दिया, अब आपको कमिट करना है कि नहीं, तो कमिट कर दो। तो हम फिर से वैसे ही git commit -m और मैसेज देके इसे क्या कर सकते हैं, सेकंड कमिट। ऐसे मत लिखा करना मैसेज, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, मतलब क्योंकि कमिट का मीनिंग ही है चेंज कर रहे हो, तो जो भी तुमने चेंज करा वो लिखना यहाँ पे। ओके सॉरी, एक गलती हो गया, मैंने ऐड नहीं करा था उसको। तो पहले हमें ऐड करना रहता है git add डॉट, फिर उसके बाद कमिट करेंगे -m, ये हो गया सेकंड कमिट। अब ये ऐड हो गया, चलो ये कमिट भी हो गया। इसको हम लोग देख सकते हैं git स्टेटस से, नहीं तो git log देख लेंगे, तो ये देखो 2 कमिट दिखा रहा है। अब हम लोग ये डायरेक्ट भी वैसे बिना ऐड किए उसको भी कमिट कर सकते हैं, जैसे इसका अगर लिख देंगे डिस्कॉर्ड सर्वर लिख देते हैं, फिर Ctrl+S से सेव करते हैं, ये दिखाएगा git स्टेटस, तो दिखा दे रहा है मॉडिफाइड। तो हम क्या करेंगे git commit -a -m मैसेज लिख देंगे जो भी है, थर्ड कमिट। ये हो गया। अब हम लोग इससे डायरेक्ट बिना स्टेजिंग एरिया के ये डायरेक्ट कमिट पे चले जाता है।
अगर इसे एंटर करें तो ये हो गया कमिट। अब इसे अगर गिट लॉग पे देखें कि हमने क्या क्या कमिट करा, कब कब करा, ये दिखा देगा कि ये देखो तुमने कर दिया। अब अगर हमें ये गिट फोल्डर नहीं चाहिए, लाइक कभी भी हम लोग को ये जो डॉट गिट फोल्डर है जो हमारा सारा फाइल्स को ट्रैक करता है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक कमांड है rm-rf डॉट गिट, इसको कर देंगे तो अब अगर हम लोग गिट स्टेटस लिखें तो ये बोलेगा नॉट ए गिट रिपोजिटरी। तो फिर से अगर इनिशियलाइज करना है तो गिट इनिट करेंगे, गिट ऐड डॉट करेंगे, गिट कमिट करेंगे -m एंड द मैसेज इज इनिशियल कमिट। तो ये हो गया। ये स्टेटस लिखने से लिखेगा ऑन ब्रांच मास्टर। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, कोडिंग करते रहते हैं, तो बहुत सारे ना लॉग फाइल्स जनरेट होते हैं, और हम आगे जब कोडिंग करते रहते हैं कुछ बग फिक्स करते रहते हैं, तो वो लॉग फाइल्स भी मॉडिफाई होते रहते हैं, और हर टाइम वो ये दिखाता है कि आपका लॉग फाइल मॉडिफाई हो गया, आप उसे कमिट कीजिए। तो हम वो सब नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब फाइल चेंज हो हम तभी अपना सारा डाटा सेव करें। तो हम लोग एक एरर लॉग फाइल बनाते हैं, अब उसे देखेंगे उसे इग्नोर कैसे करना है। तो लॉग फाइल बनाने के लिए, कोई भी ब्लैंक फाइल बनाने के लिए कमांड रहता है टच नाम। अब जो जैसा फाइल चाहिए आपको, मुझे अभी लॉग फाइल चाहिए तो मैं ये बना दूंगा, ये बन गया। अब देखते हैं कि ये टच डॉट एरर बना, ये एरर डॉट लॉग बनाए कि नहीं। ये देखो ये बन गया एरर डॉट लॉग। अब हमें क्या करना है, हम लोग एक डॉट गिट इग्नोर फाइल बनाएंगे जिसके सहायता से हम ये एरर डॉट लॉग या कोई कितने भी लॉग फाइल्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे कि अब अपने बना दिया टच डॉट गिट इग्नोर, अब ये गिट इग्नोर फाइल भी आ गया। हम इसके अंदर लिखेंगे एरर डॉट लॉग, मतलब वो फाइल का नाम जिसे आप इग्नोर करना चाहते हैं। ये लिख दिया और हमने ये काट दिया। अब अगर हम लोग गिट स्टेटस करें तो ये दिखा रहा है कि आपका गिट इग्नोर फाइल आपने मॉडिफाई करा है, आप कुछ करिए। बट अगर हम लोग डॉट गिट इग्नोर पे ऐड किए बिना ही गिट स्टेटस मारते तो दिखाता कि एरर डॉट लॉग फाइल भी आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट कर देंगे और गिट कमिट -m क्या लिखते हैं, गिट इग्नोर, ऐसा कुछ लिख देते हैं कमांड, ये कर दिए। अब अगर हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं ये लॉग फाइल पे जाके, चलो कुछ भी लिखते हैं, वाई आर यू इग्नोरिंग मी, आर यू मैड, ये लिख देते हैं। चलो सेव कर दिया। अब हम लोग गिट बैश पे जाएंगे और गिट स्टेटस करें तो दिखाई नहीं रहा है, हमने तो इग्नोर करके रखा है, अब कैसे दिखाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे एरर फाइल है और आप मतलब हर फाइल का नाम तो नहीं लिख सकते ना, कितने भी एरर लॉग फाइल्स है, आप हर फाइल का नाम तो नहीं लिख सकते। तो आप क्या करें, गिट इग्नोर पे जाके ये हटा दें और लिखें स्टार डॉट लॉग, कंट्रोल S से सेव करें और अब देखते हैं कि ये दिखाएगा कि आपने गिट इग्नोर को मॉडिफाई करा है। हम फिर से गिट ऐड डॉट करेंगे, गिट कमिट -m करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इग्नोर्ड ऑल लॉग फाइल्स। अब अगर हम लोग ये एरर डॉट लॉग, ये स्टार डॉट लॉग तब लिखते हैं जब हम लोग को सारे लॉग फाइल्स इग्नोर करने हैं। यहाँ पे लिखते हैं यू नॉनसेंस। अब देखते हैं कि ये इग्नोर कर रहा है कि नहीं। गेट स्टेटस, हाँ ये इग्नोर कर रहा है। बट अगर आपने एक फाइल को पहले से ही ट्रैक कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये फाइल को इग्नोर करना है, तो आप उसे खाली गिट इग्नोर पे ऐड कर देंगे और उसे मॉडिफाई करेंगे तो वो वैसा नहीं हो सकता। वो दिखाएगा कि आपका फाइल चेंज हो रहा है। तो हम अगर कोई फाइल इस पे क्रिएट करते हैं, लाइक न्यू करके कुछ भी टेक्स्ट फाइल अगर करते हैं, तो ये
कुछ करते हैं लाइक code.txt, तो इधर दिखा देता है कि आपने इसे ऐड किया है, अब इसे आप ट्रैक करो और कमिट करते जाओ। तो git status एक तो मोस्ट रन कमांड है, इसको आप रन करके इसको देख सकते हो कि ऐड है कि नहीं, और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अगर एक फाइल को आपने ट्रैक कर दिया है, जैसे मैं ऐड डॉट कर दूंगा तो ये code.txt भी, ये भी हम अब इसे भी ट्रैक कर रहे हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल को हम ट्रैक ना करें तो ये हम ऐसे कर सकते हैं git rm -- कैच्ड, फिर वो फाइल का नाम क्या था, कोड मैं भूल गया, code.txt, code.txt। तो ये अब इसे हम लोग और ट्रैक नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं, एक मिनट, इसको कुछ एडिट करते हैं, Ctrl+S। ये पहले हमने इसे ऐड करा था, अब जैसे ही मैंने वो रन करा git rm -- catched code.txt, ये अनट्रैक हो गया। तो ऐसे इसके मदद से हम लोग कोई भी फाइल जिसको हमने ट्रैक करा है उसे अनट्रैक और ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए सिंपल है, git add डॉट कर सकते हो स्पेस दे के, ये स्टेजिंग एरिया पे चला गया, ये देखना ग्रीन हो जाएगा अभी। बट जैसे ही हम लोग ये करते हैं git rm -- catched और फाइल का नेम code.txt, ये फिर से अनट्रैक हो गया, रेड कलर पे दिखाएगा। अब ये हो गया। अब जब डेवलपर्स काम करते थे तो लाइक वेब डेवलपमेंट में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि फुली फंक्शनड है। अब ऐसा रहता है कि हमें वेबसाइट को अपडेट करना पड़ता है, न्यू कंटेंट डालना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग करना पड़ता है। तो डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच रहता है ना वो मास्टर रहता है। बट अगर हम लोग कुछ मास्टर को कुछ मॉडिफाई करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये कोड रन नहीं हो रहा है या वेबसाइट कुछ ख़राब है, रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि वापस से वो वहाँ कैसे आएँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ब्रांच बना देते हैं। बट उससे पहले अगर हम देखना चाहें कि गिट ब्रांच करने से क्या क्या ब्रांच है हमारे पास, तो हम लोग ये कर सकते हैं गिट ब्रांच। तो ये दिखा रहा है कि ये हम लोग अभी हैं मास्टर पे। तो ब्रांच बनाने के लिए और वहाँ पे जाने के लिए साइमल्टेनियसली हम ये कर सकते हैं गिट चेकआउट -b, मतलब बना रहे हैं, और एक तो ब्रांच का नाम दे सकते हैं जो मैं यहाँ दे रहा हूँ डेवलप। तो अगर वो कर गए तो ये दिखा रहा है कि गिट हमने बना दिया और स्विच टू ए न्यू ब्रांच डेवलप। तो यहाँ पे ब्रैकेट पे देखना है डेवलप दिखा रहा है ब्लू कलर पे। तो अब अगर गिट ब्रांच रन करें तो दिखा रहा है 2 ब्रांच अपने पास है और डेवलप पे ग्रीन कलर कर रखा है क्योंकि हम लोग हैं अभी डेवलप पे। अगर हम लोग फिर से जाना चाहते हैं मास्टर ब्रांच पे तो हम ऐसा सिंपल सा कमांड है गिट चेकआउट मास्टर कर देंगे और ये मास्टर पे चले जाएगा, स्विच टू ब्रांच मास्टर, और ये अपना फाइल जो भी है। तो अब हम लोग जाएंगे गिट चेकआउट। अब जैसे कि हमारा ये डेवलप वाला ब्रांच बना हुआ है तो हम लोग को और क्रिएट नहीं करना है, गिट चेकआउट डेवलप करके चले जाना है। अब उस पर कुछ बनाना है, ये हो गया स्विच टू ब्रांच डेवलप। अब अगर इस पे हम लोग कुछ फाइल बना रहे हैं, चलो develop.txt लिखते हैं, ये अपन बन गया। अब गिट स्टेटस करेंगे तो ये आ गया code.txt जिसको मैंने अनट्रैक करा था, और ये आ गया develop.txt। अब अगर इसको हम लोग कमिट कर देते हैं git add डॉट git commit -m, कुछ ऐसा लिख देते हैं switched branch। तो हमने कमिट कर दिया दोनों फाइल को। अब अगर गिट लॉग करके देखेंगे कि हमने क्या क्या कमिट करा है तो ये सब करा है। वो पहले में हम लोग ये 4th कमिट स्विच्ड ब्रांच, उसके बीच में हम लोगों ने उसको डिलीट कर दिया था, तो ये 1st 2nd 3rd नहीं दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने फिर से इनिशियलाइज किया और 4th कमिट लिखा था। तो यहाँ से हम अगर ये सारा दिखा रहा है,
हम लोग क्यू करके एग्जिट कर सकते हैं, क्यू अपन जो क्यू स्विच है उसको क्लिक करके एग्जिट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग जाएंगे गिट चेकआउट मास्टर पे, अभी हम लोग हैं डेवलप पे और हमने इस पे एक develop.txt बनाया, हम जा रहे हैं गिट चेकआउट मास्टर पे। अब देखना ये गायब हो जाएगा, ये जो था ना 2 फाइल code.txt और ये सब गायब हो गया क्योंकि हम लोग ये ब्रांच पे आ गए। और ये ब्रांच पे आके हम लोग अगर कुछ फाइल बना रहे हैं, जैसे कि मास्टर ही कर देते हैं, master.txt, और यहाँ पे हम लोग आके कमिट कर रहे हैं git commit -m master file created। चलो ये हो गया। अब अगर हम लोग git status देखें तो ये दिखा देगा on branch master nothing to commit working tree clean। अब अगर फिर से हम जा रहे हैं develop branch पे, तो अब आ गए हम लोग स्विच टू डेवलप्ड। यहाँ पे देखो हमने डेवलप बनाया था और code.txt को ऐड करा था। वहाँ क्या हुआ, हमने इसको बिना कमिट करे ही हम लोग डेवलप ब्रांच पे आ गए। तो जब यहाँ पे कमिट करके हम वापस गए, ये code.txt वहाँ पे नहीं रहा क्योंकि हमने इसे बिना कमिट करे ही ब्रांच चेंज कर दिया। तो जब भी ब्रांच चेंज करो ये इंश्योर करना कि तुम्हारा ब्रांच पूरा क्लीन है। ये मैसेज आना चाहिए कि ऑन ब्रांच जो भी है, ऑन ब्रांच डेवलप नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, उसके बाद ही ब्रांच चेंज करना। अब अगर ये देखना चाहते हो कि कौन से ब्रांच पे हो उसके साथ लास्ट कमिट, तो ये लिखना है गिट ब्रांच -v और लास्ट कमिट। डेवलप का लास्ट कमिट था स्विच्ड ब्रांच, मास्टर का लास्ट कमिट था मास्टर फाइल क्रिएटेड। और ये क्या करता है, ये ना सबको एक यूनिक आईडी दे देता है। ये बहुत बड़ा रहता है, 16 डिजिट्स का रहता है, बट अभी लाइक ये समथिंग 7 डिजिट का है। ये छोटा सा आईडी है और ये सबके लिए यूनिक रहता है। तो ये तो हो गए यहाँ के कमेंट्स। अब हम लोग देखेंगे गिट और गिट हब का क्या काम है। उससे पहले एक चीज़ और, कि हमें अगर कोई ब्रांच डिलीट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं गिट ब्रांच, एक मिनट ठीक है। तो हमने क्या करा, डेवलप भी एक तो ब्रांच बनाया है और मास्टर भी एक ब्रांच बनाया है, और हम करना चाहते हैं मर्ज। लाइक अब हमें पता लग गया कि हमारा जो कोड है, हमने जो मॉडिफिकेशंस किए हैं वो सब मस्त काम कर रहा है, और हमें मास्टर पे मर्ज कर देना है ताकि ये डिज़ाइन सब अपलोड हो जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये इंश्योर करना कि तुम लोग वही ब्रांच पे हो जिसको तुम मर्ज कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट करना सही लगता है। गिट मर्ज, जो भी ब्रांच हम लोग मर्ज करेंगे, डेवलप ऑलरेडी अप टू डेट। ओके, तो ये गिट स्टेटस अगर दिखे, नथिंग ब्रांच गिट चेकआउट मास्टर। अब करते हैं गिट मर्ज डेवलप। एक मिनट, ये लिनक्स का ऐसे ही रहता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा, एक मिनट, एस्केप करना है, एस्केप दबाना है, फिर इधर WQ दबाना है। एक मिनट, WQ के W, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, चेक करने दो, एक मिनट। ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, WQ लिखना चाहिए, होना तो चाहिए WM, नॉट एन एडिटर कमांड। ओके,
कंट्रोल सी क्विट। हाँ सॉरी, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसने अभी ऐड कर दिया है। तो ऐसा रहता है लिनक्स का कमांड, थोड़ा गड़बड़ कर दिया इसने। जब भी हम लोग मर्ज करें तो ये एक नया विंडो को ले जाता है और वहाँ पे हमें फर्स्ट एस्केप दबाना है, फिर कॉलन WQ दबा के एंटर करना है। पता नहीं ये फर्स्ट क्यों मना कर रहा था। अब ये मर्ज हो गए, ये सारे फाइल्स मर्ज हो गए। अब हमें मास्टर पे हैं, अब देखते हैं। ये देखो आ गए, ये डेवलप उधर था, ये आ गया, ये KJG जो भी है ये इधर है, मास्टर हम इधर ही बनाए थे, ये भी आ गया। अब अगर कोई ब्रांच को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। लाइक अब हमें डेवलप ब्रांच चाहिए ही नहीं, तो वो भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, गेट ब्रांच -D, ये डिलीट के लिए ये है, और डेवलप, तो डिलीटेड ब्रांच डेवलप। अब अगर हम लोग गिट ब्रांच सर्च करें तो ये खाली मास्टर दिखा हुआ, क्योंकि हमने डेवलप ब्रांच को डिलीट कर दिया। तो अब देखते हैं कि हम लोग गिटहब के साथ इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जाते हैं यहाँ पे, सर्च करते हैं गिटहब के, जैसे कि मेरा खुला हुआ है तो मैं वहीं से चले जाता हूँ। तो ये मेरा अपना रिपोजिटरी वाला सामान सब गिरा हुआ है। तो कोई भी तुम लोग का ये सब प्लेन रहेगा, कुछ नहीं होगा। कोई भी फाइल तुम लोग को नया एक तो रिपोजिटरी बनाना है, लाइक हमको वो गिट वाला ट्यूटोरियल इधर अपलोड करना है, सो दैट कोई देख भी सके, कोई एडिट भी कर सके, वो सब। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये प्लस साइन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे न्यू रिपोजिटरी। अब यहाँ पे आराम से आपको नाम दबाना है, गिट ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे अगर बीच में ओके मैंने L छोड़ दिया, यहाँ पे अगर बीच पे स्पेस दोगे तो ये कुछ ऐसा लेगा कि आपने इसे ये दे दिया, तो ये ऐसा देना पड़ता है, स्पेस ये नहीं लेता है। डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखते हैं, दिस इज ए डेमो रिपोजिटरी, ये कर दिया। अब प्राइवेट भी कर सकते हो, पब्लिक, बट पब्लिक अभी रखेंगे सो दैट सबको दिख भी जाए। और यहाँ पे रेडमी फाइल तुम लोग कुछ कर सकते हो, सो दैट मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन आ जाए। ऐड गिट इग्नोर ये भी कर सकते हो। फिर क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे, अभी ये खुल जाएगा। अब जिसने अपना गिट बैश पे रिपोजिटरी बनाया नहीं है उसके लिए देख यहाँ पे दिखा दे रहा है कि गिट इनिट करना है, फिर अपना गिट कमिट -m करके फर्स्ट कमिट करना है, फिर गिट ब्रांच जो भी करना है, मास्टर पे आना है, ये सब। बट हम लोग ये सब कर चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्टली अब क्या करेंगे, यहाँ पे गिट पुश -u, और सॉरी उससे पहले ये वाला जो लिंक है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C से। और यहाँ पे ये क्योंकि लिनक्स पे बेस्ड है तो यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल+V काम नहीं करता है, शिफ्ट+ इंसर्ट करना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्टली राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो यहाँ से। ये हो गया पेस्ट। अब इसको रन करेंगे, ये रन हो गया। अब वहीं इसका सेकंड वाला है गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, इसको शिफ्ट+ इंसर्ट करना है, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये हो गया 100% डन मेरा, ये मास्टर ब्रांच का ये गिट ट्यूटोरियल गिट यहाँ पे अपलोड हो गया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे जाऊँ तो ये दिखा दिया सरेओम जो भी है मेरा ना, ये डोमेन। फिर इसके बाद हमने code.txt करा है, develop.txt करा है, कि जो भी है इसका नाम master.txt ये भी करा है। अब अगर हमें डिलीट रिपोजिटरी करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सेटिंग्स पे जा सकते हैं और यहाँ से डिलीट दिस रिपोजिटरी ये कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रिमोट जो बनाया, ये इसका नाम डिफ़ॉल्ट ये ओरिजिन देता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे गिट रिमोट लिखें तो ये दिखा देगा कि ओरिजिन तुम्हारा एक ही रिमोट है और वही तुमने बनाया है। अब अगर हमने क्या किया, ये फाइल पे आए, हम लोगों ने और एक फाइल बनाया, क्या करते हैं change.txt।
तो इसको हम लोग कैसे अपने गिटहब में लेंगे। तो सॉरी, मैंने ये क्या हो गया, क्यू डालना है, सॉरी गिट स्टेटस करना था, मैंने गिट लॉग लिख दिया गलती से। ये आ गया। इससे पहले तो हमें कमिट करना है। एक बार कमिट कर दिया, मैं अभी डायरेक्टली ऐड और कमिट एक साथ कर रहा हूँ। एडेड चेंज डॉट टीएक्सटी कुछ ऐसा लिख देते हैं। अब ये क्या हो गया, ओह सॉरी, इसको ये अनट्रैक है। तो जब भी फाइल अनट्रैक रहता है तो हमें पहली बार गिट ऐड डॉट करना पड़ता है, हम डायरेक्ट उसे कमिट नहीं करा सकते। ये मेरी गलती थी, उसके लिए माफ़ी। चेंज, अरे यार क्या हो रहा है, चेंज डॉट टीएक्सटी। अब ये चला गया। अब यहाँ पे दिखाएगा कि ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट। अब हमें क्या करना है कि हमें ये फाइल, अब देखो यहाँ पे हमने ये चेंज डॉट टीएक्सटी बनाया, पर ये यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे अगर हम लोग जाएं कोड पे, ये यहाँ पे नहीं है, ये चेंज डॉट टीएक्सटी नहीं आया है, बट हमने इसे एक रिमोट पे ऐड करके रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, मतलब ये ब्रांच में अगर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है तो इसे गिटहब में पुश कर दो। अब ये फिर से कुछ ऐसा बड़ा सा लिखता है और अपना जो भी चेंज डॉट टीएक्सटी वाला फाइल था वो आ जाता है। इसे रीलोड करते हैं, आ जाना चाहिए। ये देखो आ गया, ये चेंज डॉट टीएक्सटी वाला फाइल। अगर तुम्हें एक ब्रांच पूरा बनाना है, फिर उसे एक पूरा ब्रांच को ही गिटहब पे डालना है। जैसे कि मैंने डेवलप वाला बना लिया, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी ये डेवलप में आ गए। यहाँ पे कुछ एक तो फाइल बना देते हैं, टेक्स्ट फाइल, जिसका नाम क्या रखें, डेवलप 1 रख देते हैं, develop1 डॉट टीएक्सटी। यह बन गया। अब हम लोग इधर अगर देखें तो गिट स्टेटस, जैसे कि ये मैंने पहली बार बनाया तो मुझे गिट ऐड डॉट करना पड़ेगा, इसे स्टेजिंग एरिया पे लाना पड़ेगा। फिर मुझे गिट कमिट -m करके develop1 कुछ लिख देते हैं और मैंने इसे कमिट कर दिया। अब मुझे ये टोटल ब्रांच ही पुश करना है रिमोट पे। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये इंश्योर करना कि एट द टाइम वो आप डेवलप ब्रांच पे ही हो, जो ब्रांच को पुश कर रहे हैं आप वहीं पे ही हो। तो ये लिखना है गिट पुश ओरिजिन नेम ऑफ द ब्रांच। नेम ऑफ द ब्रांच क्या है, अपना डेवलप ब्रांच है, तो ये कर देंगे। तो ये फिर से कुछ ऐसा बड़ा सा लिखता है, फिर ये आ जाता है। जैसे कि अगर ये हम लोग इधर देखें तो ये देखो ये आ गया, इधर 2 ब्रांच दिख रहा है। तो एक है मास्टर, एक है डेवलप। तो अभी एक्टिव ब्रांच पे हमने अभी जस्ट करा था, तो ये एक्टिव दिखा दे रहा है। तो ये हो गया। अब ये जो है फॉर का, ये क्या करता है, लाइक मैं कोई सा भी एक ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स के लिए काम आता है, कोई सा भी कर लेते हैं। मोजिला का कर लेते हैं, mozilla.org। इसका गिटहब कहाँ गया, इनोवेशन पे कहीं है क्या, mozilla.org का गिटहब चाहिए हमें। ओके क्या हो गया, mozilla.org गिटहब। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे उन लोग का ये कुछ है। तो अब अगर कोई ओपन सोर्स पे काम करता है तो उसको पता होगा। तो जैसे कि ये करते हैं, चलो जावास्क्रिप्ट का कुछ करते हैं, कुछ तो समझ में आएगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग फॉर करते हैं, तो फॉर करने का ये फ़ायदा है कि मेरा जो ये सामान वहाँ मौजिला का था, ये पूरा मेरे पास आ गया। ये देखो अब ये मेरे गिटहब के अकाउंट पे खुल गया। तो इसको काट देते हैं, चलो यहाँ यहीं देखते हैं, यहीं देखेंगे। तो हमने कुछ करा था, कहाँ गया, एक मिनट, कि ट्यूटोरियल है इधर, बिफोर करा था।
मिनट, हाँ ये रहा। तो ये आ गया, ये दिख रहा है फॉग्ड फ्रॉम मॉजिला रिलीजियस कॉम सेंट्रल जो भी। तो ऐसे हम लोग दूसरों का फाइल फॉर कर सकते हैं, और अब इसको हम लोग अपने लोकल डिवाइस पे लेके कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो फॉर का बेसिकली ये मीनिंग रहता है, और ये ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हम लोग मतलब ओपन सोर्स पे काम करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेके उसका काम करते रहते हैं। अब हमें ये कोड अपने लोकल डाटाबेस पे लाना है, तो वो भी देखेंगे। यहाँ पे हमें कोड के ऊपर क्लिक करना है, और ये क्लोन जो लिखा है ये हमको कॉपी करना है। ये पूरा HTTPS वाला जो है ये इसको कॉपी करना है, और हमें लिखना है git clone और लिंक पेस्ट करना है। शिफ्ट इंसर्ट अगर करूं तो ये आ गया, देखो क्लोनिंग अब लग रहा है, ये अभी मेरा आ जाएगा, बट कहाँ आएगा ये मुझे देखना पड़ेगा। ये धीरे धीरे ये करेगा, और जो भी वहाँ से फाइल है ये पूरा मेरे सिस्टम पे वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब वैसे के वैसे आने के बाद मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, और यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट पे जाके न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अब जब भी मैं न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा वो लोग को पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदे ने कुछ मॉडिफिकेशंस करा है, और वो वहाँ से देखेंगे कि क्या मॉडिफिकेशंस इसने किया। अगर अच्छा है तो ये मेरा पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अपना जो मास्टर वाला उन लोग का जो है उसके साथ ये लोग मर्ज कर देंगे। तो लाइक मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया, तब फाइनली वैसा रहता है कि आपने कंट्रीब्यूट कर दिया। तो अब देखते हैं ये कितना टाइम हुआ, 20% हुआ, बहुत बड़ा फाइल है शायद। वैसे ये आ कहाँ रहा है, ये यही आ गया, देखो यही अपने फोल्डर पे जहाँ पे हमने करा है यही आ गया, रिलीजियस कम सेंट्रल। तो ये हो जाएगा, ये हो गया गिटहब के साथ इसका यूज़। इसको होने देते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। फिफ्टी परसेंट ही हुआ है अभी। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया या कमेंट्स किसी ने नहीं लिखा तो ये ऐसे जा सकता है, गिट SCM बोल के है, उधर जा सकता है। ये अपना गिट का डॉक्यूमेंटेशन है, इधर जाना डॉक्यूमेंटेशन पे, और तुम्हें रेफरेंस मैनुअल पे जाना है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ऐड, तो ये देखो ये गिट ऐड, ये इसने क्या क्या लिखा है मुझे तो समझ नहीं आता है, बट मैंने जो बताया वो देखते हैं। गिट ऐड कहाँ है, हाँ देखो जैसे ये इसने गिट ऐड वो नाम लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है .txt। ये भी कर सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर फाइल को तुम लोग को ऐड करना है वो भी कर सकते हो, नहीं तो गिट ऐड डॉट से क्या होता है सारा फाइल को हम लोग ऐड कर देते हैं। अब जैसे कि कुछ और देखते हैं, स्टेटस का देखते हैं, ये है क्या गिट स्टेटस। इसको क्लियर करके हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या है। ऐसे बहुत सारे रहते हैं बट ये इतना नेसेसरी नहीं है, हमें खाली गिट स्टेटस से ही वही काम हो जाता है। यू कैन, तुम देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ब्रांच का देख लेते हैं, गिट ब्रांच जो भी है, हाँ, ये देखने से हमें ब्रांच कौन कौन सा अपने पास है ये मिल जाता है। अब ये देखते हैं ये हुआ कि नहीं, और बहुत बड़ा फाइल उठा लिया मैंने। कुछ लिखता है रिजॉल्विंग डेल्टस, अब आ गया ये। अब देखो ये पूरा मेरे सिस्टम पे आ गया, इसके साथ मैं कुछ भी छेड़खानी कर सकता हूँ। ये कुछ लिखा है पाइथन वाइथन, बहुत सारे फाइल है ये लोग के, कुछ पाइथन वाइथन कुछ भी। ये रेडमी फाइल है, इसको ओपन करना, इसको पढ़ना, फिर जो भी छेड़खानी कर सकते हो। मौजिला के वेबसाइट पे जाके पढ़ लेना कि ये क्या क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे web.ext है, इसको ओपन तो कर लिया हम लोग ने, वो कर दिया, बट उससे पहले तुम्हें ये पढ़ना है कि क्या क्या चाहिए। देखो ये जैसे बोला है कि Node.js को इंस्टॉल करो, npm को इंस्टॉल करो, फिर npm होता है नोड पैकेज मैनेजर, जावास्क्रिप्ट में रहता है बेसिकली। तो फिर क्लोन करना है ये, उसके बाद तुम
इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हो, जो कि मैं अभी इतना नहीं घुसूंगा ओपन सोर्स के ऊपर। ये सारे हो गए। यहाँ पे मेरे गिट्स के सारे प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं, देखो। तो फाइनली ये ख़त्म हो गया। अब अगर हम लोग देखें गिट ब्रांच करते हैं, तो अपने पास 2 ब्रांच है, हम हैं डेवलप पे। तो अब अगर गिट स्टेटस, तो ये लिखेगा, ये अपने आपने इसे अनट्रैक करके रखा हुआ है, इसे ऐड कर सकते हो, गिट ऐड। जैसे कि इसका नाम क्या है, रिलीजियस। ये मतलब आधा लिखो तो उसके बाद टैब दबा देना, ये पूरा, अगर वो फाइल का कुछ नाम नहीं है तो ये कर देता है। तो ये फोल्डर है, इसको कर दिए। तो ये क्या क्या लिख दिया, यू हैव एडेड अनदर गिट रिपोजिटरी इनसाइड योर करंट रिपोजिटरी। तो ये देखते हैं गिट स्टेटस पे क्या हो गया। हाँ, तो ये आ गया न्यू फाइल। अब इसे हम लोग कमिट कर सकते हैं, कमिट -m एडेड, क्या लिखे, मोजिला का फाइल चुरा लिया, ऐसे लिख देता है। तो ये आ गया। अब अगर गिट स्टेटस देखें तो अपना पूरा क्लीन है, और गिट लॉग देखें तो हमने ये अभी ये मोजिला का फाइल चुरा लिया है, ये दिखा रहा है। फिर develop 1 करा था, add change.txt करा था। अब अगर इसको तुम लोग को एग्जिट करना है तो क्यू दबा देना, बस ये एग्जिट आ जाएगा, फिर वापस आ जाता है, तो तुम काम कर सकते हो। अब अगर हम लोग जाएं गिट चेकआउट ब्रांच, वो भी कर सकते हैं, मतलब अभी डेवलप ब्रांच पे, हम लोग मास्टर ब्रांच पे जा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो इतना ही था। किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हो, पूछ सकते हो। Anyone having any doubts? तो गिटहब का बहुत यूज़ रहता है डेवलपर्स के लिए, तो बहुत काम आता है ये। तो अभी अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो मैं आयुष्य को हैंड ओवर करता हूँ। हाँ है, बताओ। हाँ, तो जब वो मर्ज ब्रांच करते हो तो लिनक्स में अलग विंडो ओपन होता है, तो फिर उसमें क्या प्रेस करना रहता है? एस्केप मारो पहले, फिर कोलोन लिख के WQ लिखने के बाद एंटर करो। अच्छा, ठीक है। एस्केप मारना, फिर कोलोन लिखना, WQ, फिर एंटर। ये लिनक्स का कमांड रहता है। तो हम लोग को एस्केप दबाना है, फिर कॉलन दिख के WQ दबाना है, और वो हो जाएगा। और किसी को कुछ डाउट है? Guys, thank you for joining today. I hope you could understand everything about Git. Hope to see you soon again, like in few days. If you like our tutorial, you should join us on YouTube, Instagram, and Discord. I'll share the link in the chat box.